السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 19واں پارہ تلاوت کیا۔ اس کے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ کل کی تشریح کے اندر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک چیز کہی تھی کہ عورت کے لیے غیر محرم کون ہے، وہ غلط لفظ میں نے بول دیا تھا۔ اصل بولنا یہ تھا کہ عورت کے لیے محرم کون ہے، یعنی میں نے جو کل رشتہ دار بتائے تھے وہ سب اس کے محرم رشتہ دار، ایسے رشتہ دار ہیں جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ غیر محرم کہا جاتا ہے ان رشتہ داروں کو جس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، یعنی وہ سب انسان جس سے عورت کی شادی ہو سکتی۔ تو وہ لفظ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے جو بھی غلطیاں ہوں وہ سب مجھ سے ہے، اور جو بھلائیاں ہوں اللہ کی طرف سے ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کے سامنے 19واں پارہ تلاوت کیا گیا، جس کی ابتدا سورہ فرقان کے بچے ہوئے حصے سے کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے کافروں کا ذکر کرتا ہے۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے نبی کی باتوں کو نہ مانا ہوگا، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن وہ انسان جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا، یعنی قرآن اور حدیث کو نہ مانا ہوگا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ مانا ہوگا، وہ انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو زور زور سے چبائے گا، اور چبا کر کیا کہے گا، میری یہ کاش کہ میں نے نبی کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہوتا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنایا ہوتا، ان کے کیے گئے حلال اور حرام کو مانا ہوتا، اور زندگی ان کی سنتوں کے مطابق گزاری ہوتی۔ یا ویلتا، میری بربادی، کاش میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی آج ہمارے سامنے دنیا میں ہوتا ہے نا، نبی کی تعلیمات پیش کی جاتی ہے، لیکن ہم دنیا کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی ایک مثال ایسے بھی دیکھیں کہ بھئی ایک مسلمان کو پتا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو حرام ہے، لیکن دوست بھئی پی لے پی لی، کھا لے کھا لیا، یعنی دوستوں نے کہا تو کھا لیا۔ تو اس دن ایسا انسان جس نے دوستوں کے بولنے پر، دنیا والوں کے بولنے پر حرام کاریاں کی ہوں گی، حلال سے دور رہا ہوگا، وہ اس دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا ہوتا اور فلاں فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد بھی برباد کر دیا، ضلالت کے راستے پر ڈال دیا، اور یقیناً شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان کو شرمندہ کر دے۔ اور اس دن رسول بھی ایک بات کہیں گے، اے میرے رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہ کہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو قرآن کی تلاوت نہ کرنا، دوسرا قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرنا، تیسرا قرآن پر عمل نہ کرنا، کہ بھئی آج ہماری یہی تو زندگی ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بڑی قرآن سے محبت ہے، قرآن باہر نکل گئے ہیں، خوب تلاوتیں ہو رہی ہیں، پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ جائے گا وہی قرآن کو واپس اندر رکھ دینا، پڑھنا چھوڑ دینا، تلاوت چھوڑ دینا۔ تو یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ تکلیف دینے والا یہ عمل ہوگا کہ انسان ایسا عمل کرے کہ قرآن کو وقت وقت پر پڑھے جب ضرورت ہو، اور پھر اس کے بعد قرآن کو پوری طریقے سے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے لے کر اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کیا، ان کے بارے میں بتایا، فرعون کی کچھ شرارتوں کا ذکر کیا کہ فرعون کی شرارتیں کیا کیا تھی، فرعون نے کیا کیا شرارتیں کی تھی، کیسے اس نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بعد ایک بہت پیاری چیز جو ہم مومنوں کے لیے سیکھنے والی ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر اس کے بعد کی آیتوں کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین خاص اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یقیناً رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز میں چلتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں، تکبر کرتے ہوئے نہیں، اکڑتے ہوئے نہیں، بڑی ایک وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کر چلنے والے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی بھی جاہل آدمی ان سے بات چیت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلامہ، یعنی السلام علیکم، یعنی وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ لوگ جن کی زبان گندی ہے ان سے بحث نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے بھئی آپ راستے پر چل رہے ہیں، ایک آدمی آپ سے ٹکرا گیا، اگر اس نے ایک گالی دی تو بدلے میں ہم اس کو 4 گالیاں دیتے ہیں، لیکن رحمان کے بندوں کی خاصیت کیا ہے کہ جاہل جب ان سے جہالت کرتا ہے تو وہ جہالت کا جواب نہیں دیتے بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کتنی
कितनी ही बहस करे वो जाहिलों का जवाब नहीं देते हैं। दूसरी खासियत क्या है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यकीनन रहमान के बंदे वो हैं कि वो रातों को गुजारते हैं कभी सजदा करके कभी क़याम करके, यानी रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। और वही लोग हैं रहमान के बंदे जो लोग कहते हैं अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज कर दे, यकीनन उसका अजाब बड़ा चिपकने वाला है। और उसके बाद वही रहमान के बंदे हैं कि जब खर्च करने पर आते हैं तो ना बहुत ज़्यादा यानी हद से तजावुज़ भी नहीं करते, टू मच भी नहीं करते और कंजूसी भी नहीं करते, यानी अल्लाह जब देता है तो उसको मयाना रवि इख्तियार करते हैं, मीडियम बनकर रहते हैं। अल्लाह ने दिया, गरीबों को भी खिलाना पिलाना, लोगों की मदद करना, खुद अपने ऊपर भी खर्च करना, अपने बाल बच्चों पर भी खर्च करना, यानी ना तो जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, नहीं है तो आदमी बड़ा परेशान, ज़रा सा अल्लाह नवाजता है तो फिजूल खर्च बन जाता है, एक्स्ट्रा काम करना, एक्सेस चीज़ों पर खर्च करना। तो अल्लाह कहता है कि मोमिन रहमान के बंदे वो हैं कि जो एक्स्ट्रा यानी फोकट का खर्चा नहीं करते, ज़रूरत का खर्चा करते हैं, वो या पूरी तरह कंजूस भी नहीं बन जाते कि गरीबों की मदद ही ना करें, खर्चा ही ना करें, या अपने जिस पर खर्चा करना छोड़ दें। अल्लाह ने माल दिया फिर भी फटे कपड़े पहनकर घूमे, फटे जूते पहनकर घूमे। तो मोमिन वो है जो दोनों के बीच में रहता है। मोमिन वो है कि जिनके बारे में कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते नहीं, किसी का मर्डर करते नहीं और जिनाकारी नहीं करते, और जो ऐसा करेगा यकीनन वो बाउंड्री को क्रॉस करने वाला है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन दोहरा अजाब देगा। लेकिन अगर नेक अमल किया तो अल्लाह बड़ा प्यारा बदला देता है कि अगर किसी ने चाहे गुनाह कर लिए लेकिन अगर उसके बाद तौबा कर ली और नेक अमल कर लिए तो अल्लाह क्या कहता है, यही वो लोग हैं। अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर 70 के अंदर, फ़उलाइका, यही वो लोग हैं युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों से बदल देगा और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला अपना इनाम बता रहा है कि सोचो अल्लाह कितना रहीम है, कितना गफूर है कि इंसान चाहे गलतियाँ कर ले, ख़ताएँ कर ले, अल्लाह को नाराज़ कर ले, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं उसके सारे गुनाहों के बदले नेकियां लिख देता हूँ। यानी कल तक जो अमाल नामा मेरा गुनाहों से भरा हुआ था, अगर आज मेरी नीयत खालिस है, मैं अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता हूँ, तो वही जो गुनाह कल मेरे थे अल्लाह ताला उन तमाम को नेकियों से बदल देगा। उसके बाद सूरह शुअरा, शायर कहा जाता है शेर पढ़ने वालों को, शुअरा बहुत सारे शायरों को कहा जाता है, चूँकि इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने शायरों की बुराई को बयान किया है, यानी वो शायर जिनका मकसद सिर्फ दुनिया हो, दुनियादारी हो, झूठ बोलना, झूठी शायरी करना, तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी का इजहार करता है। लेकिन जो इंसान दीन के लिए शेर बोलता है तो वो जायज़ है। जैसा कि अल्लाह के नबी के ज़माने में आपके शायर जो मशहूर थे वो हस्सान बिन साबित थे, जिनको आप खुद कहते थे कि शेर पढ़ो क्योंकि तुम्हारी शायरी जो है वो काफिरों पर तलवार और तीरों से ज़्यादा असर करती है, उन्हें तकलीफ़ देती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत की इब्तिदा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। कुछ नबियों का इस सूरत में ज़िक्र किया गया है। उनका ज़िक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया। जब इब्राहीम का जिक्र किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम के सामने उन्होंने जो दावत दी थी उस दावत का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि ए लोगो सुनो, मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, सुनो मेरा रब कौन है, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, इबादत के लायक ज़ात वो है कि जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे हिदायत का रास्ता दिखाता है। इबादत के लायक वो है, आयत नंबर 87, 88, 80 के अंदर, 81, 82 और 83 तक की आयत नंबर सूरह शुअरा के अंदर अल्लाह कहता है कि इबादत के लायक वो ज़ात है जो मुझे खाना खिलाती है, जो मुझे पानी पिलाती है, यानी खाना खिलाने की ताकत किसी की नहीं, मेरा अल्लाह ही खिलाता है। पानी बरसाने की आसमान से ताकत किसी की नहीं, मेरा अल्लाह ही बरसाता है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही तो ज़ात है जो मुझे शिफा देती है, और वही ज़ात है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मुझे वो दोबारा ज़िंदगी देगी, और वही ज़ात है कि जिसके बारे में मैं तमन्ना करता हूँ, मैं चाहत करता हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। यानी यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के रब होने की दलीलें दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों को रब बनाते हो जो खुद मोहताज हैं, खाने पीने के मोहताज, बीवी बच्चों के मोहताज, पैदा हुए फिर मर गए, तो असल में माबूद नहीं, माबूद वो है जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात होती है। उसके बाद यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह का तज़किरा करता है। हज़रत नूह के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है।
लूत अलैहिस्सलाम के बाद कौम समूद का जिक्र किया गया। कौम समूद की बुराइयां जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ उसे जिक्र किया। फिर कौम शुएब का जिक्र किया, कौम शुएब की कुछ खताओं का जिक्र किया। खताओं का जिक्र करने के बाद रब्बुल आलमीन कुरान की आज़मत बताते हुए सूरह शुअरा आयत नंबर 193 के अंदर कहता है, 92 और 93 के अंदर कहता है, वही इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, यकीनन ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है, जिससे लेकर रूहुल अमीन यानी जिब्रील आए और आपके दिल पर लाकर दिया ताकि आप लोगों को डराने वाले बन जाएं। और इस कुरान की खासियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है और ये कुरान जैसा आपके पास है वैसा ही अल्लाह ताला ने लोहे महफूज के अंदर इसको महफूज कर दिया है। अल्लाह के पास ये कुरान मौजूद है। उसके बाद सूरह नमल आज हमारे सामने तिलावत की गई। नमल कहा जाता है चींटियों की जमात को। नमलतुन एक चींटी, अन्नमल बहुत सारी चींटियाँ। चूँकि अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर चींटियों का जिक्र किया है इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम सूरह नमल रखा है। अल्लाह ताला इस सूरत की इब्तिदा के अंदर हज़रत मूसा का हल्का सा जिक्र करने के बाद हज़रत सुलेमान के जिक्र की तरफ आए। सुलेमान वो कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम हुकूमत से नवाजा था। ऐसी हुकूमत के हज़रत सुलेमान ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे वो हुकूमत देना जो तूने ना मुझसे पहले किसी को दी हो, ना मेरे बाद किसी को देना। तूने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान जिन्नात के ऊपर भी ताकत दी थी, वो जिनों के ऊपर हुकूमत किया करते थे, यहाँ तक कि वो जानवरों की, परिंदों की बातचीत को समझा करते थे, उनकी बातचीत भी जानते थे। एक मरतबा हज़रत सुलेमान सफ़र कर रहे थे, आपके साथ पूरा काफिला था। काफिला चलते चलते जब एक वादी के अंदर आया यानी एक मैदान से गुजर रहा था तो वहाँ पर चूंटियों का एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था। चूंटियों की जमात वहाँ पर रहा करती थी और वो रास्ते से गुजर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने हज़रत सुलेमान के लश्कर को देखा तो चिल्ला कर चूंटियों की जमात एक चूंटी चूंटियों से क्या कहती है, कालत नमलतुन, एक चींटी ने कहा। आयत नंबर 18 सूरह नमल के अंदर वो कहती है, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ये चींटियों की जमात जल्दी से अपने घरों के अंदर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुमको कुचल दे जबकि वो जान भी नहीं पाएंगे कि तुम वहाँ पर खड़े हुए हो। अब यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है कि हर चीज़ का जानने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हज़रत सुलेमान नबी थे लेकिन फिर भी उनको पता नहीं था कि उनके सामने चूटियाँ हैं, अगर वो चल जाते तो चूटियों को कुचल देते, इसलिए चींटी ज़ोर ज़ोर से कह रही है। अब ये चूटी कहती है, हज़रत सुलेमान इसकी बात को सुन लेते हैं, सुनकर समझ जाते हैं, समझते ही मुस्कुरा उठते हैं, हंसने लगते हैं और क्या कहते हैं, यानी जब उनको ये एहसास होता है कि अल्लाह देखो चींटियाँ बोल रही हैं और मैं इनकी बात समझ गया, अगर नहीं समझ पाता तो मैं कुचल कर निकल जाता, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, यानी मोमिन की ये शान होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब भी उसे कोई नेमत दे, कि जैसे हज़रत सुलेमान को जब अल्लाह ने नेमत दी थी कि वो जानवरों की बातचीत समझते थे तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वैसे ही हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हज़रत सुलेमान शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, क़ाल रब्बी औज़ीनी, ए मेरे रब मुझे ताकत दे, अन अशकुर, कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूँ जो तूने मुझ पर की, मेरे वालिदैन पे की। ए अल्लाह तू मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे, वो अमल जिससे तू पसंद करता है, और ए अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे नेक लोगों में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर। देखो ये नबी हैं और नबी होकर भी अल्लाह से जन्नत की तलब कर रहे हैं, जन्नत की दुआ मांग रहे हैं, नेकी की दुआ मांग रहे हैं। यानी एक मोमिन को जन्नत की कितनी दुआ मांगना चाहिए। उसके बाद अगर आप आयत नंबर 19, 20 और उसके बाद की आयतों को पढ़ेंगे तो दूसरा एक और वाक़या इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि हज़रत सुलेमान का रोज़ाना का ये मामूल था कि वो सबकी अटेंडेंस लगाया करते थे, हाज़िरी लिया करते थे। अब हाज़िरी ले रहे थे, उन्होंने सब जानवरों की हाज़िरी ली तो उनको हुदहुद गायब मिला। हुदहुद एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो नज़र नहीं आई। तो उसके बाद हज़रत सुलेमान क्या कहते हैं, व तफ़क़्क़द अत-तैर, उन्हें एक परिंदा नजर नहीं आया। तो क्या कहते हैं, मा लिया ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गायबिन, क्या बात है हुदहुद मुझे नजर नहीं आ रहा है या आज सच में गायब हो गए, अटेंडेंस के अंदर हुदहुद क्यों नहीं है। इस आयत में देखें तो एक अजीब बात हमारे नबी हमें सिखा रहे हैं, हज़रत सुलेमान हमें सिखा रहे हैं कि इंसान को फर्स्ट अपने आप पर ब्लेम करना चाहिए, डायरेक्ट सामने वाले पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, पहले खुद अपने बारे में। नहीं, हज़रत सुलेमान पहले अपनी आंखों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई मुझे नहीं दिख रहा, यानी मेरी कमी है कि भाई इधर उधर बैठा होगा, मेरी नज़र
देख नहीं पा रही, मेरी कमजोरी है, या सच्ची में वो आया नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सामने वाले पर ब्लेम करते हैं। पहले डायरेक्ट सामने वाले को ब्लेम करना, हाँ यही झूठ होगा, यही गलत होगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा। नहीं, पहले अपने आप को ब्लेम कीजिए, क्योंकि अगर अपने आप को ब्लेम करेंगे तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सामने वाले को ब्लेम करेंगे और अगर बात गलत निकल गई तो आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले अपने आप को ब्लेम करते हैं, भाई मुझे हुदूद दिख नहीं रहा है या सही में आया नहीं है, और अगर नहीं आया होगा तो आज तो उसे बड़ी सख्त सजा दूंगा या तो उसे ज़िबाई कर दूंगा। यानी कैसे नहीं आया, कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। तो जैसी हुदूद आता है तो बोलता है थोड़ा रुको, मेरे बारे में फैसला करने के पहले थोड़ा रुको। मैं कौम सबा के पास गया था, ऐसी कौम के पास से आया हूँ कि जिस कौम की खासियत क्या है कि उस कौम के ऊपर निगहबान, उसकी जिम्मेदार, उसकी बादशाह कौन है, औरत है। औरत की बादशाहत इस्लाम में नहीं है। तो वो ताज्जुब करता है हुदूद कि अरे सुनो, वहाँ पर औरत की बादशाहत है और उनके पास बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा उसे एक अर्श यानी बहुत बड़ा तख्त है जिसके ऊपर वो बैठती है, और अल्लाह ताला ने उसे खूब ताकत दी है। और एक अजीब चीज़ सुनो, सुलेमान क्या देखी मैंने वहाँ पर कि वो लोग सूरज और चांद का सजदा करते हैं। आयत नंबर 24 में क्या कहते हैं कि सूरज और चांद का सजदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए ना। शैतान ने उनको ऐसा करने का हुक्म दिया है और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है। भाई सजदा तो अल्लाह का करना चाहिए ना, जो आसमान और ज़मीन और सूरज और चांद का बनाने वाला है। इससे एक बात पता चलती है कि सोचो, वो हुदहुद परिंदा है, परिंदा होने के बाद उसे दीन की कितनी फिक्र थी, शिर्क के से वो कितना डरता था, कौम की हिदायत का वो कितनी फिक्र करता था। और हम लोग इंसान होकर नहीं करते। एक आदमी हमारे सामने शिर्क करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी हमारे सामने गैरुल्लाह की इबादत करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे कभी दीन की बात नहीं बताते। लेकिन ये हुदूद परिंदा सुलेमान को आकर शिकायत कर रहा है कि देखो ऐसी ऐसी कौम है और ऐसा ऐसा कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आप गौर करना, आयत नंबर 27 के अंदर, और पढ़कर ज़रूर इस पर अमल करना। क्या कहते हैं सुलेमान को, जब उसने पूरी डिटेल बताई हुदूद ने, तो क्या कहते हैं, क़ाला सनंजुर, हम इस मामले पर गौर करेंगे, इसकी तस्दीक करेंगे। असदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सोचो, यानी कोई खबर लेकर आए तो डायरेक्ट फैसला नहीं करना चाहिए, पहले उसकी तस्दीक कर लेना चाहिए। हम लोग तो अगर किसी ने कहा कि भाई वो आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहा है, गालियां देना शुरू, झगड़ा करना शुरू, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, बातचीत बंद, ताल्लुकात तोड़ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले एक बार तहकीक करना चाहिए। कोई खबर लाने वाला चाहे कोई भी हो, हमें एक बार सर्चिंग करना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि सच में उसने ऐसा कहा तो फैसला करना चाहिए। तो हज़रत सुलेमान यही कहते हैं कि भाई हम तो पहले उसका क्लेरिफिकेशन करेंगे, चेकिंग करेंगे, देखेंगे कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जा ऐसा करिए, मेरा लेटर लेकर जा कौम सबा के पास, और उस यानी कौम सबा की जो जिम्मेदार थी, जिसका नाम बिल्किस था, उसे ले जाकर दे दे, और फिर देखना वो लोग क्या करते हैं। लेटर देकर तू साइड में हट जाना और देखना वो लोग क्या करते हैं। तो ये लेटर ले जाकर देते हैं, तो बिल्किस लेटर को पढ़ती है, देखो सुनो मेरे सारे वजीरों, सारे जितने लोग मेरे सामने यहाँ पर हो, सब आओ सुनो, ये मेरे पास एक लेटर आया, किसकी तरफ से, हज़रत सुलेमान की तरफ से। लेटर में क्या लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान, जैसे बिस्मिल्लाह को हम कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, वो यहीं पर नाजिल हुई थी, इसलिए इसी सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह जो है वो आयत के तौर पर यूज़ किया गया है। तो क्या कहते हैं कि सुनो, मैं हज़रत सुलेमान हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे दीन बेच कर भेजा है, और सुनो मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर जुल्म करना, यहाँ आओ और इस्लाम को कबूल कर लो, दीन को कबूल कर लो। क्या करना है, वो सवाल करती है कि भाई क्या करना है बताओ, ये लेटर आया है। तो सारे लोग एक साथ कहते हैं कि भाई इस लेटर को कुछ पे ध्यान मत दो, वो बादशाह है, ऐसे कैसे हमको कह रहे हैं, हमारे पास बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, हमारे पास खूब जंग लड़ने वाले लोग हैं, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्किस कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बादशाह जब किसी बस्ती के अंदर आते हैं ना, और अगर जंग होती है तो बड़ा नुकसान होता है, बड़े लोगों को कत्ल किया जाता है, बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसा करते हैं अपन चेक करते हैं कि सुलेमान नबी हैं या बादशाह हैं। वो एक हदिया लेती है, गिफ्ट लेती है और गिफ्ट भिजवाती है कि सुलेमान को ये गिफ्ट दे देना। अब जब सुलेमान इस्लाम के पास गिफ्ट आता है तो नाराज़ होते हैं कि भाई तुम क्या समझ रहे हो कि मैं दुनिया के लिए तुम्हारे पास खत भेजा था, मैं दुनिया के लिए नहीं दीन के लिए खत भेजा था। नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। अब उसके बाद सुलेमान अपने आसपास बैठे हुए जिन्नात से कहते हैं कि सुनो, उसका तख्त उठाकर कौन लेकर आएगा, कौन उसे तख्त उठा कर लेकर आएगा। तो जिन कहता है कि आप अपनी जगह से उठोगे, उससे पहले उठा कर ले आऊँगा। इतने में एक इंसान था वहाँ पर जिसके पास इल्म था, इल्म किताब था, यानी वो किताब का जानने वाला था और अल्लाह ने उसे मोजज़ा दिया था। वो कहता है कि आपकी पलक झपकने के पहले मैं उसका तख्त उठा कर ले आऊँगा। और यकीनन यही होता है कि वो तब पलक झपकते भी नहीं, अल्लाह ने एक यानी करामत दी थी इस इंसान को कि वो पलक झपकते ही उनका तख्त उठा कर ले आता है। अब तख्त लेकर जैसे ही आता है और जब वो देखती है ये सारी चीज़ें कि अल्लाह अकबर, इनकी ये कुदरत,
یہ طاقت، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا ہے۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ آؤ محل کے اندر داخل ہو۔ تو حضرت سلیمان کا محل اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا، کانچ کا بنا ہوا تھا کہ بلقیس جب اس کے اندر انٹری کرتی تو اس کو لگتی پانی پڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے کپڑے کو اوپر کر لیتی ہیں، یعنی پنڈلیوں سے اوپر کپڑے کو کر لیتی ہیں کہ پانی میں گیلا نہ ہو جائے، لیکن جیسے ہی پیر رکھتی ہیں تو وہاں تو زمین ہی ایسی بنی ہے کہ ایسا لگتا تھا پانی بھری ہے۔ تو سلیمان کہتے ہیں کہ سنو، یہ جو ہے نا کانچ کے ذریعے بنائی گئی بڑی خوبصورت زمین ہے، تو تم ایسا مت سوچو۔ اب وہ جیسی دیکھتی ہے کہ اتنی قدرت، اتنی طاقت کہ جس کے لیے جنات کام کریں، انسان نہیں ہے، نبی ہے نہیں، یہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نبی ہی ہے، تو ویسے ہی کہتی ہے کہ میں ایمان لے آئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سلیمان ہیں، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا کہ آپ سچے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بھی ایمان لے آتی ہیں۔ حضرت سلیمان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور قوت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ تو آج کی صورت کے اندر کئی پیاری پیاری چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر پہلے تو ظالموں کا قول شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد رحمان کے بندوں کی کچھ صفت آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد کچھ سیکھنے والی چیزیں جو سلیمان کے واقعے سے ہم نے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کے اندر جما دے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس ترجمے کے اندر، تشریح کے اندر جتنی بھی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں، کیونکہ میں انسان ہوں۔ جیسا کل مجھے کسی نے بتایا تو مجھے پتا چلا، اگر کوئی بھی غلطی مجھ سے ہوتی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور اچھائیاں جتنی بھی ہو، سب اچھائیاں صرف اور صرف میرے رب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔